हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अमित अनोटमी की पाठशाला। सो लंग्स को 3 वीडियोस में कवर किया। फर्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल फीचर ऑफ द लंग ओनली। इन सेकंड वीडियो वी हैव द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, आल्सो ब्रोंchial ट्री. In third video we will discuss about the blood supply of the lungs, lymphatic drainage and the nerve supply of the lungs. In this video, this is the second video, we will discuss the bronchopulmonary segment, that is also known as the BPS. So before doing the bronchopulmonary segment, पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. But this is the bronchial tree or respiratory tree. सो ये क्या है? ये वो ट्री है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन लेते हैं. दैट मीन्स जिसके थ्रू एयर लंग्स में एंटर करती है और लंग्स में देन दिस एयर विल रीच टिल द एसाइनी एंड रेस्पिरेशन होगी. दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ये कैसे होता है? ये ट्री हम एंड में ड्रा भी करेंगे ये विद ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. तो यहाँ फास्टली करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रेकिया. दिस ट्रेकिया will divide into right and left principal bronchus. These are the principal bronchus, also known as primary bronchus. So right and left principal bronchus. Then अगर मैं एंगल देखूं तो principal bronchus में right principal bronchus is more straight. It is about 2.5 centimeter long. Left is about 5 centimeter long and left is narrow, right is broad. That's why foreign body will enter into the right side more only as compared to left. These are principal bronchus. These principal bronchus will divide into lobar और secondary. तो primary will divide into secondary. जितने लोब होते हैं लंग में उस हिसाब से डिवाइड करेगी. So right side we have 3 lobes. So 3 secondary या lobar, upper, middle and lower. हर लोब के लिए एक एक होगी. So this is secondary. Left side we have only 2. The upper, superior and the inferior 2. Only 2. So these are the lobar. Lobar are known as the secondary. अब ये लोबार जितने लोब थे उतनी डिवाइड होगी. अब ये लोबार आगे डिवाइड करेगी अकॉर्डिंग टू सेगमेंट्स which is known as the segmental or the tertiary. So tertiary or segmental bronchiole. Like this we have bronchi. Tertiary or segmental bronchi. These are primary, secondary and tertiary are known as the like this segmental. So principal, लोब के अकॉर्डिंग लोबर एंड सेगमेंटल. ऐसे हमारे पास ब्रोंखे डिवाइड हुए. अब ये ब्रोंकस जो हैं ये ब्रोंकस आगे डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स टर्शियरी विल डिवाइड मोर. और अब ये बनाएगा ब्रोंक्यूल्स. ओल्स जहां वर्ड आया दोज आर नैरो एंड स्मॉल. सो इससे छोटे छोटे जो आगे डिविजन्स होंगी दोज आर नोन एज द ब्रोंक्यूल्स. सो टर्शियरी विल डिवाइड इनटू द ब्रोंक्यूल्स लाइक दिस. उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. This is a trachea. Trachea will divide into the principal or primary bronchus. These primary bronchus will divide into the lobar. Then these lobar will divide into the segmental or tertiary. This tertiary will divide into the our respiratory part. That means इससे ऊपर का जो part होता है, tertiary से ऊपर का जो part होता है, that is known as the conducting part or conducting zone. और जो अब डिस्कस करने लगे उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी पार्ट और द रेस्पिरेटरी जोन. सो अगर मैं एक को लूं टर्शियरी को, दिस टर्शियरी will divide into the terminal bronchiole and this terminal bronchiole will divide into the respiratory bronchiole. Now this respiratory bronchiole will divide into the, अगर देखिए terminal bronchiole will divide into the respiratory bronchiole. अब ये respiratory bronchiole आगे ओपन करेगा एसाइनी में. these are the एसाइनी. ये जो आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं these are the एसाइनी. सो इनमें ये ओपन करेगा, एल्वियोलाई में ओपन करेगा ये थ्रू दी एंट्रम, एंट्रल डक्ट और एंट्रम लाइक दिस. यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ऐसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन करता है. दीज आर नोन एज द एसाइनी. ये एक पार्ट को लिया है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. और अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स में ऑन लेफ्ट साइड दिस एरिया, इसके बाद लंग्स है and right side we have this area. So this is intrapulmonary,
दिस इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी, तभी हम बोलते हैं राइट साइड में हमें 2 ब्रोंकस दिखाई देते हैं, इन द हाइलम लेफ्ट साइड में सिंगल, बिकॉज ये यहाँ से आप देख सकते हो लंग में हाइलम में एंटर होने से पहले ही 2 में डिवाइड हो जाता है। नाउ pulmonary unit. So pulmonary unit, each respiratory bronchiole will aerate small portion of lung which is known as the pulmonary unit. That means जो हमने अभी बात की थी रेस्पिरेटरी वाला जोन जो था, ये हर एक एरिया को सप्लाई करेगा, लंग के स्मॉल स्मॉल एरियाज को सप्लाई करेगा, एंड दिस एरिया इज नोन एज द pulmonary unit. So MCQ क्वेश्चन, इस यूनिट के पार्ट्स क्या हैं? These are the alveolar ducts, atria, air sacules and alveoli. So these are the parts of our pulmonary unit. तो अगर हम डायग्राम में देखें, here we have the respiratory bronchiole, they will divide into the ducts, we have ducts, then this one is the antrum, these are grape like structure, these are the alveoli, और पूरी this space is known as the sac, sac के parts होते हैं alveoli. So this structure is known as the pulmonary unit. तो हम अपना मेन टॉपिक करते हैं, दैट इज द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. दिस इज आल्सो नोन एज बीपीएस. आपको शॉर्ट नोट आता है थोरैक्स में, लंग्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. सो व्हाट इज दिस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट? इसकी डेफिनेशन देखिए, इट इज द एनाटॉमिकल सेगमेंट ऑफ द लंग्स व्हिच इज एरिएटेड बाय टर्शियरी और द सेगमेंटल ब्रोंकस. अभी हमने किया that we have the lungs. अगर मैं बोलूं राइट लंग की बात करूं, हमने ऐसे किया था लंग, then lung has upper and the lower lobe, that is upper lobe, middle lobe and lower lobe. हर लंग में ऐसे, राइट लंग में ऐसे लोब्स होंगे. अब ये लोब्स आगे सेगमेंट में डिवाइड हैं, ये लोब्स आगे सेगमेंट में डिवाइड हैं अकॉर्डिंग टू दी टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकस. दैट मींस टर्शियरी और सेगमेंटल ब्रोंकस इसको सप्लाई करेगा, हर एक को ऐसे अलग अलग सप्लाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड किया है. दैट इज द पार्ट ऑफ द लंग्स which is aerated by tertiary और segmental bronchus is known as the bronchopulmonary segment. ये लोब का पार्ट है जो एक टर्शियरी या सेगमेंटल bronchus से aerated है. So these words are very important. So this is the bronchopulmonary segment. ये bronchopulmonary segment is, you can appreciate, it is the anatomical, functional and surgical unit of the lung. So this is the main unit. यहीं से, क्योंकि हमें पता है टर्शियरी के बाद ही रेस्पिरेटरी ट्री स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी पार्ट स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इसके बाद ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह होगा. सो दिस वन यूनिट is, or one bronchopulmonary segment is the anatomical or functional or the surgical unit of the lung. अब characteristic feature very important, bronchopulmonary segment के अपने characteristic features क्या होते हैं? The shape, first of all the shape, the bronchopulmonary segments are pyramidal in shape, they are pyramidal in shape, apex is directed toward the hilum. So you can appreciate this is the hilum. So apex is directed toward the hilum and base of these is directed toward the surface of the lung. Quite obvious, क्योंकि apex से ही bronchiole ने आना है, bronchus ने आना है. So terminal bronchus ऐसे यहाँ तक reach करेगा through the apex. First point. Second, each bronchopulmonary segment is surrounded by the connective tissue. Like this, we have the connective tissue. Each bronchopulmonary segment is aerated by its own bronchus. That means हर किसी bronchopulmonary segment के पास अपना tertiary is very important word, tertiary या segmental bronchus होगा. Then each bronchopulmonary segment has its own artery. That means हर किसी bronchopulmonary segment की अपनी अपनी pulmonary arteries होंगी या अपनी अपनी branches of pulmonary artery होंगी, but they have shared pulmonary veins. Pulmonary vein इनकी
कॉमन नहीं होती। हमने अभी बोला आर्टरी इनकी अपनी अपनी है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स इनकी कॉमन नहीं होती, बिकॉज पल्मोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू. Like this we have the pulmonary veins. So pulmonary veins will share with more than one segment. Like this we have the pulmonary vein. And the tertiary bronchus की अगर बात करूं तो हर किसी का अपना tertiary bronchus होगा. पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये ब्रोंकस के साथ ट्रेवल करती हैं, लाइक दिस. सो इसीलिए हर किसी की अपनी अपनी पल्मोनरी आर्टरी होगी. ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन each segment has its own lymphatic drainage as well as autonomic nerve supply. The segment will divide lobes of the lung. हमने बोला lobes थे, हमने बोला lobes हैं, उनकी आगे डिवीजन ऑफ द सेगमेंट. पिछली स्लाइड वाले को थोड़ा सा क्लियर करें. व्हाट इज दिस पल्मोनरी आर्टरी? अगर हमने इस डायग्राम में सिंगल सेगमेंट को लिया, दिस वन इज वन सेगमेंट, दिस इज सेकंड सेगमेंट. हमने बोला हर सेगमेंट के बीच में कनेक्टिव टिश्यू होगा. So like this we have the connective tissue. Here is the connective tissue. Here is the connective tissue. So they are surrounded by the connective tissue. Now each segment has its own tertiary bronchus, and the pulmonary arteries in these segments, these pulmonary arteries are traveling along the tertiary bronchus like this. तो इसीलिए इनकी अपनी अपनी pulmonary artery है, बट वेन्स जो हैं वो ऐसे ट्रेवल नहीं करती, वो इंटरसेगमेंटल प्लेन में होती हैं. दैट मींस वेन्स आर प्रेजेंट लाइक दिस इन दी कनेक्टिव टिश्यू. तो वेन्स एक से ज्यादा सेगमेंट की कॉमन होती हैं. दैट मींस हर सेगमेंट की अपना टर्शियरी ब्रोंकस होगा, अपना रेस्पिरेटरी ट्री होगा, अपनी इनकी सेगमेंटल आर्टरियोल या पल्मोनरी आर्टरी होगी, अपनी अपनी इनकी ब्रोंकियल artery and the vein, but the pulmonary vein is common. So this is the bronchopulmonary segment. इनका नॉमेनक्लेचर और नंबरिंग कैसे की गई है, अलग अलग बुक्स में बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन थी. सो 1960 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ एनाटॉमिस्ट ने एक क्लासिफिकेशन दी, उसको एक्सेप्ट करते हैं हम लोग. अकॉर्डिंग टू दैट राइट लंग एज वेल एज लेफ्ट साइड वी हैव 10 सेगमेंट्स. सो दोनों साइड वी हैव द 10 सेगमेंट्स. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट in right lobe as well as in the left lobe, इनमें कैसे इनका nomenclature है. We have the right lobe, we have superior lobe. In right lobe we have part superior lobe, middle lobe and the inferior lobe. अगर मैं दोबारा right lung को ड्रा करूं, here we have the trachea, principal bronchial, then we will draw the right lung. Like this we have the right lung. हमने बोला राइट लंग के अभी हमने लोब ड्रा किए थे, अपर, middle and lower. Then principal bronchus will divide into the lobar. Then this lobar will divide into the segmental. Upper will divide, the superior will divide into three. That is the apex, that is apical, then anterior and posterior. It is not tough. So आगे anterior होगा तो apical, anterior and posterior. Middle में we have the medial and lateral. Lower में हम डिवाइड कर देते हैं इसको सुपीरियर, दैट इज द एपिकल ऑफ इंफीरियर लोब. तो आपने देखा ऊपर भी एपिकल बोला, दैट इज द एपिकल ऑफ सुपीरियर लोब. दिस इज द एपेक्स, दिस इज एपिकल ऑफ द लोअर लोब, एंड इंफीरियर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4. लोअर लोब को हमने 5 में डिवाइड किया. वन इज एपिकल, लोअर वन will divide into 4. These are again easy: medial, lateral, anterior and posterior. So in this way we have 10 segment. First is superior apical, second superior anterior, third is posterior. Then middle में we have, हम इनको actually Roman में लिखते हैं. Then we have the fourth, that is the middle. Fifth is middle lateral. Sixth
superior or apical of the inferior lobe. Seventh is the middle of inferior basal. Basal का मतलब inferior. Eighth is anterior basal. Ninth is lateral basal, and 10th is posterior basal. On the left side, we know we don't have middle lobe, तो middle lobe नहीं होगा, तो वहां पर यहीं पे डिफरेंस आएगा. तो लेफ्ट साइड की अगर मैं ड्रा करूंगा तो सुपीरियर आर सेम. लेफ्ट साइड में विल ड्रा अगेन, हम आगे स्लाइड में फिर ड्रा करेंगे. तो सुपीरियर आर सेम. यू कैन अप्रिशिएट एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. देन मिडल जोन वहां होता नहीं है, मिडल की बजाय हम जिसको बोलते हैं दैट इज द लिंगुलर. So we have the superior lingular and inferior lingular. So superior will divide, superior होता है पहले, superior will divide into superior lingular and middle lingular. Middle lobe left lung में नहीं होता, it is known as the lingular. Then inferior में same है, inferior will divide into the apical, middle basal, anterior basal, lateral basal and posterior. Like this we have the nomenclature. लंग को मैं कोस्टल सरफेस से देखूं, and this is the mediastinal या medial surface. So अगर कोस्टल सरफेस से देखूं, this is first, second, third, then we have the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth नहीं, eighth है, seventh नहीं है, and 10th. So कोस्टल सरफेस में हमें seventh सेगमेंट विजिबल नहीं होता. अगर मैं कोस्टल साइड से देखूं तो सेवंथ हमें दिखाई नहीं देता, आप देख सकते हो यहाँ नहीं है. अगर मीडियस्टिनल साइड में चलूं तो वी हैव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10th. तो इस साइड में हमें फोर्थ विजिबल नहीं होता. दीज बोथ आर द एमसीक्यू. तो अगर मीडियस्टिनल सरफेस से देखूंगा तो मुझे फोर्थ सेगमेंट दिखाई नहीं देता. अगर मैं कोस्टल साइड से चलूं तो सेवंथ दिखाई नहीं देता. सो दीज आर द ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स. तो एक बार फास्टली हम ड्रा कर देते हैं. हमने बोला था ट्रेकिया. दिस ट्रेकिया विल डिवाइड इनटू द प्रिंसिपल ब्रोंकस. These principal bronchus will divide into the lobar, right side 3 and left side, these are 2 lobar. Then these lobar will divide into the segmental or the tertiary, left side 3 in upper, 2 in middle, and that is 5 superior and inferior in lower. Right side upper में again 3 and यही divide करेगा lingular में 2 में and inferior में again 5. So 3 plus 2 plus 5 segments. We have total 10 segments on both sides. तो अगर मैं एक को लूं, so this या ये ऐसे हैं. These are the tertiary. These are the area which are aerated by the tertiary bronchus and these are the single ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट. अगर मैं एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट को ड्रा करूं जो आपको एग्जाम में ड्रा करना है, इट इज covered by the connective tissue. So like this we have the connective tissue. एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं. In this connective tissue हमने बात की we have the shared structure. So shared structure होता है we have, these are the pulmonary veins. So pulmonary vein you will draw like this. इसकी branches neighbors में भी जाएगी और main segment में like this. These are the pulmonary veins. Now हर segment, इसकी definition है, is aerated by its own tertiary bronchus. Like this we have the alveoli, alveolar tree. अब हर एक अपने से ही aerated होता है. दिस इज द मेन बर्ड और यही मेन आपको ड्रा करना है. देन हमने बोला था हर tertiary bronchiole के साथ ट्रेवल करती है segmental arteriole, that is the branch of pulmonary artery. So here we have the pulmonary artery and we have the bronchial artery and the bronchial vein. So like this we have the segments जो हम अगर हमें जरूरत हो सर्जरी करनी हो तो we can remove this segment like this. Connective tissue से हम इसे अलग कर सकते हैं
क्यों? क्योंकि इसकी अपनी टर्शियरी ब्रोंकस थी, अपनी इसकी पल्मोनरी आर्टरी है, बट हमें ध्यान क्या रखना है पल्मोनरी वेन का, like this. So in this way we can separate the segment ectomy कर सकते हैं। इसमें exchange of the gases कैसे होता है? We have the pulmonary artery, then एक capillary system बनाएगी related to the asyni, and यहाँ से venule system start होगा जो exchange करेगा और pulmonary vein को oxygenated blood दे देगा, जिसको डेप्थ में हमने किया है in our third video, that is the blood supply, nerve supply and lymph drainage of our lungs. तो आज के लेक्चर में हमने ट्री करा है, ब्रोंकियल ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री, उसके साथ हमने दो टर्म्स करी हैं। मे भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। एक हमने करी थी पल्मोनरी यूनिट, सेकंड इज द ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट, दैट इज द बीपीएस। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सो अगर मैं किसी भी लंग को लूँ, राइट या लेफ्ट लंग को, लाइक दिस, देन लंग हैज द पार्ट्स, लोब से बना है, upper lobe, then we have the middle lobe, then the lower lobe, and these lobes are composed of bronchopulmonary segment. Now each segment has pulmonary unit, that means pulmonary unit small parts हैं, वो parts हैं जिन्हें respiratory bronchiole aerate करता है। bronchopulmonary segments वो parts हैं जिन्हें terminal bronchiole एरिएट करता है। वर्ड एरिएटेड है दोनों में क्योंकि एयर अंदर जाती है। तो अगर किसी यूनिट को रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एरिएट कर रहा है, देन दिस इज द अवर पल्मोनरी यूनिट। अगर इसको टर्शियरी ब्रोंकियोल एरिएट कर रहा है, दैट इज द अवर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। अगर हम फास्टली आपको एक बार क्लियर कर दूं, ट्रेकिया बाइफरकेट, trachea will bifurcate in the principal bronchus. No, these principal will divide into the lobar. The lobars will divide into tertiary or segmental. Now the tertiary they will divide into the respiratory tree. तो respiratory tree के जो parts होते हैं जो हमने थर्ड स्लाइड में किए थे, these are the alveolar duct, then we have the atria, and then we have the alveoli and the saccule. So these are the unit of pulmonary unit, these are the structure of pulmonary unit, and tertiary bronchus से जो भी चीज एरिएटेड हो रही है वो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट से बना है। दैट मींस लंग्स बने हैं पल्मोनरी यूनिट से, देन पल्मोनरी यूनिट इकट्ठे होकर बना रहे हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ब्रोंकोपल्मोनरी इकट्ठे होकर बना रहे हैं हमारे पास लोब्स, लोब्स इकट्ठे होकर बनाते हैं लंग्स। एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? सेगमेंटल रिसेक्शन, दैट मींस हम एक सेगमेंट को, लंग्स को रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। लोब भी रिमूव कर सकते हैं, लोबेक्टोमी, मतलब उससे छोटी सर्जरी करनी हो, देन दिस इज द सेगमेंटल एक्टोमी। इसमें हम क्यों कर सकते हैं? द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ सेगमेंट एक्टोमी क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमने बात की हर सेगमेंट की अपनी ब्रोंकोवेस्कुलर सप्लाई है, मेनली इसकी अपनी अपनी सबकी आर्टेरियल सप्लाई है, अपना अपना सबका टर्शियरी ब्रोंकियोल है। सो इनकी अपनी आर्टेरियल सप्लाई और ब्रोंकियोल की कारण हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इफ देयर इज chronic disease such as tuberculosis, bronchiectasis और benign neoplasma, कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें एक सेगमेंट निकालना है तो we can remove it, बट यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है? हमने बोला था connective tissue में we have the vein and vein are common for more than one segment, एक से ज्यादा सेगमेंट के लिए वेन कॉमन थी। तो हम इस वेन को टाई करने से पहले सोचेंगे, मेनली हम इस वेन को टाई मेन स्टम्प से नहीं करते, इसकी ब्रांचेस को टाई करेंगे। अगर हम वेन के मेन स्टम्प को टाई कर देंगे तो इसका जो नेबर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसका भी डैमेज हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर थिंग दैट वी शुड थिंक दैट एट द टाइम ऑफ द segmentectomy we have to take care of the pulmonary veins. Then segmental atelectasis, atelectasis में क्या होता है? अगर एयरवे की ब्लॉकेज होगी, किसी भी एयरवे की ब्लॉकेज होगी तो उस सेगमेंट में एयर नहीं जाएगी, दैट मीन्स वो सेगमेंट अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में। तो अगर वो सेगमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा
तो धीरे धीरे ये सेगमेंट अपने आप खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, एटेलेक्टेसिस हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमें इस केस में सेगमेंट को निकालने की जरूरत नहीं होती, ये कोलैप्स कर जाता है और साथ वाला सेगमेंट इनलार्ज कर जाता है, ये अफेक्टेड सेगमेंट का भी काम करना शुरू कर देता है। सो अप्लाइड नोट में कई बार आपको केस रिपोर्ट आती है, केस के आता है लाइक बेबी के लिए आता है मोस्टली, बेबी हैव इनहेल सम फॉरेन बॉडी। अब ये फॉरेन बॉडी अगर मैं लंग्स में सर्च करूंगा तो कहाँ मिलेगी? इफ पेशेंट इज इरेक्टेड, पेशेंट इरेक्ट है तो हमें पता है, पहले तो हमने कर लिया था, दिस फॉरेन बॉडी विल ट्रेवल टुवर्ड द राइट साइड। तो राइट में भी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं राइट लंग को ड्रा करूं लाइक दिस, वी हैव द राइट लंग, राइट वाले में भी वी हैव द अपर, we have the middle and the inferior lobe. So अगर patient erected है, here we have the upper, we have the middle and we have the inferior lobes like this. So the foreign body will trickle from the trachea to the lower lobe, quite obvious because gravity की वजह से नीचे आएगी। अब लोअर में कहाँ जाएगी? लोअर के भी, दैट मीन्स लोअर लोब के भी किस सेगमेंट में ये चीज ट्रेवल करेगी फॉरेन बॉडी? So if patient is erect in position, then this will travel to the lowermost part, that is the posterior segment, posterior basal segment. So अगर patient erect position में है, standing position में है, तो foreign body will be present in the posterior basal segment. अब इसी को अगर चेंज कर दें, if patient is lying और पेशेंट इज ऑन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट लाई कर रहा है, देन फॉरेन बॉडी विल ट्रिकल, कैसे आएगी फॉरेन बॉडी? अब यहाँ पर जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है वहां जाएगी, दैट मीन्स अगेन वी हैव द अपर एंड मिडल लोब्स, ये तो ऊपर है, वी कैन अप्रिशिएट, दिस वन इज द लोअर लोब, तो लोअर लोब में ही कहीं जाएगी। तो लोअर लोब में ये जो फॉरेन बॉडी है, इफ पेशेंट इज इन स्पाइन पोजीशन, इट विल पास टू द लोअर lobe in the superior segment. So supine में superior basal segment में जाएगी, इसी को एपिकल भी बोलते थे, अगर बेसल नहीं बोलना है तो सुपीरियर एपिकल सेगमेंट में जाएगी। और अगर पेशेंट इज इरेक्ट, देन इट विल पास टू द पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। सो दीज ऑल आर एमसीक्यू क्वेश्चन एंड इनके एनाटॉमिकल बेसिस का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ these two pathologies. So I think now you can write about this. So thank you. If you have any question and query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.